Okay, so good afternoon, everyone. Today we are going to present our second episode of Good Vibes Within podcast called as Good Vibes Only. So, in today's time, we all are overwhelmed and disconnected from ourselves and from what truly matters to us. But at Good Vibes Within, we believe that true well being comes when the mind, body, and soul, that is yourself, are in harmony. So, to take this spirit ahead, we have an esteemed guest today with us on the podcast. Meet a man who proves it's never too late to rewrite your story. 30 plus years of experience in the Indian Air Force, nearly a decade shaping future officers as an instructor, and now turning heads as a model and brand ambassador. So I'm honored to have Wing Commander Praveen Kumar today with us on our podcast, Good Vibes Only. So I welcome Praveen. Good afternoon. Hi, Barul. Very good afternoon to you. How are you A doing? very, very, very warm welcome to you. We are so happy and glad to have you here today. Thank you. Thank you so much, Barul. Thank you so much. Thank you so much for Okay, the nice introduction also. Thank you, Barul. okay, thank you, thank you. So let's start from the very beginning. शुरुआत से ही शुरू करते हैं. So let's understand आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि what made you join Air Force? Air Force join करने का ख्याल आपके बचपन में आपके मन में कैसे आया? We would love to know that. Okay, Parul, if I say about Air Force was in my blood. Okay. My father was in Air Force, so I was born in that environment of Air Force. I was born in Air Force Hospital that way, you see. And as a whole, if you see, it was affecting my childhood. It was helping me growing up, and I was finding it very interesting. The campus environment. I studied in Kendriya Vidyalayas at Air Force bases, various Air Force bases where my father was posted to. So उस समय मैं शायद पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था जितना मैं बाकी सब चीज़ों में भी हुआ करता था। क्योंकि शायद Mhm. मेरा प्रिंसिपल लाइफ़ का ये रहा है कि सिर्फ़ पढ़ाई से काम नहीं चलता है, इसके अलावा भी आपके अंदर में और भी सब खूबियाँ होनी चाहिए। तो मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में लगभग सारे स्पोर्ट्स खेलता था। शायद वाटर पोलो और आइस हॉकी के अलावा जो भी प्रोवाइड स्कूल्स करते थे उस समय, तो मैं सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करता था। And I was, people used to say that like my first prize in drawing and painting was also reserved in school. So these kind of things, I was getting involved in and I was growing that way. And when my stage came rather, when I passed my class 12th exam, my father said like, I think you should join Air Force because he was not very confident seeing my second division in class 12th. So I was not very confident about joining Air Force that particular time, but then my father insisted, and then I joined Air Force that way, just after 12th. ओके ओके सो दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एयरफोर्स भी ज्वाइन करने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है तो अच्छा है आपने कि थोड़ा सा मतलब इफ यू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स समथिंग डेफिनेटली योर इंक्लिनेशन इट डाइवर्ट्स यू देयर Yes. सो नाउ आप कोई ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपको याद आता है वन ऑफ द मेमोरीज ऑफ योर एयरफोर्स डेज दैट यू स्टिल feel good about, you feel proud of yourself for that, or maybe you smile when you think of it. कोई एक ऐसा मोमेंट आपको ध्यान आता है जो कुछ आपको बैक द मेमोरी लेन ले जाता है समथिंग. देखिए मेरी लाइफ जो है 36 प्लस इयर्स इन सर्विस इन एयरफोर्स इनिशियली 10 years as an instructor
and then I cleared my SSB. Then I became a logistician, and 25 plus years as a logistic officer in Indian Air Force. So life is full of challenges, for me, whether it was prior to getting commissioned or after getting commissioned as a logistic officer. So, by and large, I was getting all independent portfolios after my first, tenure at Delhi. So that posed a lot of challenges here and there. And especially, I would like to mention over here, which not only brings a smile of satisfaction, but also a sense of achievement to me when I was posted to a place at an Air Force base at Saharanpur, wherein we were fighting with at two fronts. This was year 2020 when COVID struck, and at that particular time, even the from the northeast or the northern area, northern borders, we had some issues. So that was a time when we were there and we were facing these challenges. And as a team, we could sail through very nicely, and I could provide all the support to my station when all the, you see, a logistic officer is supposed to provide, and I, as a head, was supposed to be providing food, we call it rations, and the clothing and empty support and support to, to let my planes fly. So all these kind of support, which was expected that particular time when we see that markets were closed, मंडी सारी बंद है, फ्रेश रेशन कहाँ से आएगा, कहाँ से हम लोगों ट्रूप्स के लिए वो सारी ज़रूरतें जो जो दिनचर्या की ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। तो उसमें मेरी टीम के साथ में हम मिलकर जब हमने जिस टीम में आधे लोग कोविड से अफेक्टेड थे। लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बट उस समय शायद I know. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस फोर्सेस दे वर ऑन टोज, we were marching on double speed, that way if you see. So that was a time when we were not caring about our own self, and we were just putting efforts in the interest of the nation. And we were also nodal agency for providing oxygen to the northern region and to that area. So that was a most challenging part which we could sail through very nicely. और वो मुझे समय एक ऐसा याद आता है जो जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन देता है और एक स्माइल मेरे फेस पे लेके आता है कि हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था और अपने कमांडर को, अपने कमांड को और अपनी एयरफोर्स को हमने सर्वोपरि रखते हुए और पूरी मेहनत से और पूरे जज्बे के साथ में काम किया था। तो वो मुझे याद आता है। मेरे को लगा तुमसे I'm वो sure, मिल सकता Praveen, I है। can so very well relate. बल्कि मुझे ये लगता है कि ये जो आपके जो डिफेंस बैकग्राउंड में होने की वजह से जो आपका माइंडसेट है, जो इतना डिसिप्लिन, स्ट्रांग एंड टू बी देयर ऑन द टोज ऑल द टाइम जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हम भी समझते हैं बीइंग इन द टीम ऑफ गुड वाइब्स विद इन, बिकॉज वी फोकस अ लॉट माइंडसेट पे, हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, बिकॉज यहीं से सारी शायद शुरुआत होती है। But somehow, if you can guide the audience or the listeners also, okay, how did this Air Force shape your mindset? Or maybe the way you look at life today? Because if I remember, आपसे मेरी कल ही फोन पे बात हो रही थी, and you have experienced something which is like not a very pleasant moment recently, just a day before in your life, and you are all set, where I just thought that there would be a possibility हम शायद ये पॉडकास्ट आज नहीं कर पाए या रीस्केड्यूल करेंगे, बट आई सल्यूट टू योर दैट डिसिप्लिन, टू योर स्ट्रेंथ, टू योर माइंडसेट। सो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी और लोगों को भी आगे बात पहुंचाना चाहेंगे कि हाउ दिस शेप्ड इनटू द पर्सनालिटी विच यू आर टुडे। Firstly, thank you for acknowledging that, Parul. And let me tell you, I didn't find it much difficult to give you that yes, a bold yes for this podcast, because I understand my responsibility and I understand my commitment. And this commitment is not something which I'm not used to. This had been there for some time. When I joined Air Force, I was just a boy. I was just a boy of 18 years, and this Air Force has converted that boy into a man who has Absolutely. conviction, a man who has conviction, who has courage, who has that maturity to withstand any kind of pressure.
and which can convert any difficult situation into something which is जो कि जैसे आप कहेंगे कि जो किसी को आसान बना दे बिल्कुल। तो ये जो क्वालिटीज डेवलप हुई हैं, ये डेवलप इस एयरफोर्स के कारण ही तो मेरे में हुई हैं। ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप हुई, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ में, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में। हमने एक दूसरे का साथ देना सीखा, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखा जब वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं। हमने अपने ट्रूप्स को ये कहना सीखा कि तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें क्या घबराने की ज़रूरत है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो जब ये कॉन्फिडेंस हम आप उनको देते हैं और ये कॉन्फिडेंस जब उनमें आता है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मिलकर हम सब एब्सोल्युटली। लोग मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि और ऐसे ही होना चाहिए ये चीज़। और मेरे ख्याल में ये डिफेंस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि फैमिली से हटके भी हमारी एक अपनी ही फैमिली हो जाती है। वेर एवर वी आर, एज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, वेर एवर यू गो यू हैव योर ओन स्मॉल नेट कनेक्शन विच स्टेज फॉर एवर। एंड मैं कहीं ये चूकूंगी नहीं कहने से कि कोर्समेट्स की बॉन्डिंग जो मैंने देखी है, I mean, as you mentioned, you all entered when you were 18, 19, 20, and it stays so strong till date. We all have reached somewhere close to 50s now, but इतनी पुरानी दोस्ती और उस दोस्ती को निभाना, मैंने hats off। ये तो मैंने आपके कोर्समेट्स और ये एफर्ट्स के जो और डिफेंस रादर आई शुड से that goes full credit to that growing which you have experienced, right? बिल्कुल तारू, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हम अपनी फैमिली से हमारा अफेक्शन होता ही है। अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ में तो हमारा रिलेशन होते ही है, हमारे क्लोज़नेस होती ही है। उनकी तरफ हमारा कमिटमेंट होता ही है। बट हम इस दायरे को कितना बढ़ा पाते हैं, कितना इसको एक्सटेंड कर पाते हैं। चाहे वो उसके अलावा फिर हमारा जो वर्किंग स्पेस है, जहाँ पे हम लोगों के साथ में हैं, लोग ये सोचते हैं, लोग ये कहते हैं और ये एक ट्रेंड है, ये एक धारणा है कि जब हम काम करते हैं तो उसके बाद में एक हमने जॉब छोड़ा, उसका दूसरा पकड़ा तो पीछे वाले जो वो छूट जाते हैं पीछे। पर शायद हम लोगों को वो जीवन जीने का तरीका नहीं आया, हम लोगों को वो लोग पिक करने नहीं आए कि जो कि एक्चुअल में हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और होने चाहिए और हमें उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए अगर वो एक वर्थ हैं उस हिसाब से। क्योंकि आपकी दोस्ती सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए नहीं होती है, आपकी दोस्ती किसी इंसान को समझते हुए, उनको ये देखते हुए कि वो हाँ, वो वर्थ हैं और आप भी उनकी ज़िंदगी में वर्थ हैं, अगर आप एक-दूसरे का हाथ थामते हैं, तो वो हाथ थमा होना चाहिए आखिरी वक़्त तक, जब तक आप उनका साथ दे Absolutely. सकें, आप उनका साथ दे सकें। और जैसे आपने मेंशन किया, मैं उस बात को भी आज मेंशन करना चाहूँगा, उससे मुझे स्टोरी याद आई जब आपने मुझे मेंशन किया कि कल मेरी लाइफ़ में जो कुछ हुआ और उसके बावजूद भी आज मैं इस पॉडकास्ट में हूँ, तो शायद मेरा ये मेंशन करना इस स्टोरी का छोटा-सा शायद कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगा। तो मुझे पारुल कल आपसे बात करते हुए मैंने शायद इस बात को मेंशन किया बट मैंने इसको इलैबोरेट नहीं किया कि मुझे एक वाकया याद आता है जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। वो ये वाकया था कि मुझे उस व्यक्तित्व का नाम मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर दैट पर्सनैलिटी बट ही वाज़ अ नोटेड पर्सनैलिटी एंड ही वाज़ इनवाइटेड टू गिव अ लेक्चर to an elite audience, of several thousand people who were sitting in the hall, and he was supposed to address them. When he comes on the stage over there and he stands in front of the mic, then someone comes from the side and he comes and उसकी कान में कुछ कहते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। उसके बाद में उस स्टेज पे वो जो इंसान जो खड़े होते हैं, वो अपना चश्मा उतारते हैं ऐसे और अपना रुमाल निकालते हैं, चश्मे को पोंछते हैं, अपनी आँखें पोंछते हैं, फिर चश्मा ऐसे लगाते हैं, फिर पानी का एक ग्लास लेते हैं, पीते हैं। उसके बाद में जैसा उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो एक बहुत अच्छी बात कहेंगे और अच्छी स्पीच देंगे, उन्होंने वो बहुत इफेक्टिव स्पीच दी, सब लोगों ने अपलॉड किया उनको। उसके बाद में वो चले वहाँ से तो उनको एक मेमेंटो वहाँ देना था, बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाना चाहूँगा, मुझे कुछ अर्जेंसी है। तो किसी ने पूछा कि आपको ऐसी अर्जेंसी क्या होगी कि आप अभी यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हुआ क्या है कि मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई है। जब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वहाँ पे सन्नाटा छा गया। उन्होंने सोचा कि फिर सब एक शांति छा गई। उन्होंने एक ना मिक्स्ड इमोशंस वहाँ चल रहे हैं कि ये इंसान ऐसी न्यूज़ सुनकर कि ये ऐसी बात कर सकता है, स्पीच दे सकता है और उसके बाद में वो वहाँ से जाते हैं। तो उससे सिर्फ़ हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि क्या हमारा कमिटमेंट सिर्फ़ एक ही चीज़ से है? क्या सिर्फ़ एक फैमिली की तरफ ही है? क्या उन्होंने उस
वो कमिटमेंट नहीं समझा, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी उन ऑर्गेनाइज़र्स के प्रति, उन ऑडियंस के प्रति जो वहाँ बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो शायद उन्होंने ये डिसीज़न लिया, ये मैच्योर डिसीज़न था। ये इस डिसीज़न से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद उन लोगों की तरफ भी है ज़िंदगी में, जो कि आपके ऊपर आश्रित हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी, जिसने मुझे इम्पैक्ट भी किया, तो शायद ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ में हमको वो स्ट्रेंथ देती हैं कि हम इस तरह के डिसीज़न ले पाएँ। तो ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ थी पारुल, जो कल हुई। यस, तो वही मेरे को लगता है कि जो हमारा ये पॉडकास्ट करने का आइडिया भी यहीं से आया कि कैसे छोटे छोटे हम लोगों के साथ कनेक्ट होके अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वी कैन लिव लाइफ किंग साइज इन अ बिगर वे, एब्सोल्यूट। leaving all your struggles and traumas behind. So अगर आपने उस स्टोरी को सुन के आज आप impactful थे and you took this call today, I'm sure आज आपकी बात सुन के भी बहुत से लोग आगे एक इंस्पिरेशन ले रहे होंगे and they would definitely look forward to be and there in our armed forces and defense background. So let's now take a little lighter tone. अभी हमने तो जाना कि आप एज एन एयरफोर्स ऑफिसर हाउ विल यू एंड हाउ इट शेप्ड योर पर्सनालिटी. लेट्स टर्न इट अराउंड. रियल लाइफ में प्रवीण कौन है? रियल लाइफ में प्रवीण कैसे हैं आउटसाइड ऑफ दिस यूनिफॉर्म? अ, सो नाउ यू आर पल रियली लिविंग दैट लाइफ, सो इट विल बी द राइट टाइम टू आस्क, आई थिंक. ओके। मैं ये कहूँगा कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं एक लड़के से एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था, जब मैं अपने आप को बना रहा था, तब जो क्वालिटीज़ मेरे में डेवलप होनी चाहिए, जो मैं सोच रहा था कि ये एक हर इंसान में वो एक कुछ प्रिंसिपल्स उसके लाइफ में होने चाहिए। और उन सबको जब मैं ग्रहण कर रहा था अलग-अलग सोर्सेज़ से, अलग-अलग लोगों से मिलकर जिन्होंने मुझे लाइफ में इम्पैक्ट किया, वो सिचुएशंस जिन्होंने जिन्होंने मुझे धीरे-धीरे बनाया, तो उसके हिसाब से जो मैं बना, वो मैं ये समझता हूँ कि मैं 2 तरह की पर्सनैलिटी बना हूँ पारुल। एक तो वो पर्सनैलिटी है जब मैं बहुत सीरियस होता हूँ, अपने काम की तरफ बहुत सजगता के साथ में, बहुत डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ में, बिना किसी चीज़ की परवाह किए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे, मैं बड़ा क्लियर होता हूँ उस मामले में कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है और मुझे क्या एक्शन लेना है। एक उस तरह का व्यक्तित्व रखता हूँ, जब मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं करता हूँ और अपना अपना देश सबसे आगे, अपनी वर्दी सबसे आगे और अपना काम जो ज़िम्मेदारी हमको दी गई है, वो सबसे आगे। इसको रखते हुए पूरी तन्मयता के साथ मैं वो काम करता हूँ, मैं एक इस तरह का इंसान हूँ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे अंदर में अभी भी वो बालक या एक वो नटखटपना अभी भी मौजूद है, जो शायद मैं हर एक को नहीं दिखाता हूँ। उसके लिए शायद वो लोग जो मेरी लाइफ में मैटर करते हैं और जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं और जिन्होंने मेरी दोस्ती अर्न की है और मैंने उनकी दोस्ती अर्न की है, तो उन उन लोगों के साथ में मैं वो क्षण व्यतीत करता हूँ, जिस समय मैं खुलकर होता हूँ और एन्जॉय करता हूँ। और जितना ग्लैमर मेरे अंदर है और रहा है, जिसको मैंने शायद अपनी ब्लूज़ पहनते हुए एग्ज़िबिट नहीं किया, वो शायद मैं अब अपनी ब्लूज़ को टाँगने के बाद में अब वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और उस तरह की ज़िंदगी को जिए जा रहा हूँ। एब्सोल्युटली, तो मुझे बिल्कुल यही सवाल ध्यान आ रहा है कि व्हेन यू द डे व्हेन यू वर हैंगिंग योर यूनिफॉर्म, that was the day, definitely was nostalgic, was emotional. But Yes. how was the exact feeling? Were you prepared for this kind of second innings? Were you prepared कि क्या करना है वो, और you were just flowing, देखा जाएगा जैसे होगा? What, because this No. is something important I want you to highlight, mainly because normally people feel that life after retirement is like a mundane routine वैसे ही, but आपने तो एकदम जबरदस्त यू टर्न मार के लाइफ में you are actually exhibiting all glamour and hidden Praveen, which we are seeing the new innings of Praveen. So please थोड़ा सा इसके बारे में भी जरूर बताइए. Okay. First of all, the mindset. If you talk about mindset, मैं 30th जून 2024 को रिटायर हुआ। मैंने अपनी यूनिफ़ॉर्म टाँगी। बट मैं ये कहूँगा तो गलत होगा कि मैं ऐसे वक़्त पर
ऐसे मोड पर था कि मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना है, या बिल्कुल इस तरह का था कि या शायद मैं सिर्फ बैठ के अपने काउच पे बैठ के कॉफी पी रहा हूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा और शाम को शायद गोल्फ खेल रहा हूँगा। जो टिपिकल रिटायर्ड फौजी से एक इमेज बनती है या एक सोचा जाता है कि ऐसा होता होगा, या फिर एक टिपिकली फौज की इनिंग्स खत्म करने के बाद में मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्विच करूँ और मैं कोई कोई जॉब जॉइन करता, तो शायद मेरे प्लान में ये नहीं था। मेरे अंदर में पारुल काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हिडन थी, हिडन डिज़ायर्स थे, जो कि सिर्फ़ मेरे थे, मेरे अपने थे और जिनको शायद मैं किसी से व्यक्त नहीं करता था इतना। So, but I had those plans in my mind because in my life, I never lived my life without any planning. So I always had plans in place. And I feel that like anybody for that matter should have some plans, some future plans. And if you're not planning for your future, I think you are doing something wrong because you're not doing only wrong for yourself, but also for the next generation. So it is your responsibility to be, very, very particular about this planning part. So that plans were there. And when I was approaching this stage and this date, so before that, my first responsibility was to put my family and all those responsible people who were dependent on me in a very comfortable position, so that that gives me that freedom to do whatever I felt like to do. So I was preparing for that, be it financially, be it on other fronts. So I was engaged in that. I was doing my job, engaged in this also, preparing myself to what I'm supposed to do after hanging my uniform. Then the day approached, and then that was a mixed feeling, certainly, because the blues, which was in my blood since birth. So I was about to hang, that. So this was a mixed feeling. I was not feeling very happy, hanging it on there. But then this was the fate. I had to do that. But then I took maybe a month or so when I was doing something, those pending jobs which I could not address and handle when I was engaged in, more responsible routine before. So I was into that, and I was preparing my mindset to do that particular thing which was there hidden, that I'm supposed to do it now. And this particular freedom actually gave me all the time in the world to plan for it and to get into that. So that is how I switched from that mindset to this mindset. And this time is actually giving me all the pleasures which I desire to have. And this was basically a kind of, you can say, a surprise for my course mates, my friends, even to my family also. My family also never knew about this plan. And then this is my actually, my trait also, my habit also, that sometimes few things I just keep it to myself till the time I am in the position of executing it. तो जब मैंने इस चीज में एंटर किया, तो मैंने शायद कुछ टीजर भेजे कुछ अपने दोस्तों के पास में, या कुछ मैंने सोशल मीडिया में डाले। और सबसे पहले तो शुरुआत इसकी मेरी लास्ट ईयर एनिवर्सरी के दौरान हुई, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ में थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जाना कि शायद कि ऐसा कुछ प्रवीण कर रहा है, और जब तक वो कुछ अच्छी शेप ना ले लेता तो मैं उसको कैसे बताता। तो शायद मैंने उसको इतना ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें मैं अच्छे से अपना कंडक्ट करता गया और उसमें मेरे को अच्छा फीडबैक मुझे मिला, तो फिर धीरे धीरे करके सभी को पता लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। Okay, okay, okay. So that's fantastic. But I must appreciate the second innings is equally good. And if you had planned whatever you had planned, God had bigger plans for you. So now I'm sure you are enjoying the second innings equally. But uh, how was the reaction of all those closed loved ones, postmates, when you physically and when you officially announced? Now this is how you're going ahead in your life in this part. I would say that they were a little shocked. Okay, they were not they were not prepared for this, that Praveen is going to give this surprise, because they knew that like I have
आई हैव दैट आर्ट की तरफ मेरा एक झुकाव है। मैं पेंटिंग करने वाला हूँ और शायद जो मेरा बैकग्राउंड था एयरफोर्स में और जिस तरह के असाइनमेंट्स मैं अंडरटेक कर रहा था हाईएस्ट ऑफिस में बैठकर एयर हेडक्वार्टर्स में, तो शायद उससे मिलता-जुलता मैं कुछ काम करूँगा। तो वो सोचते थे और तो इसलिए शॉक्ड थे। बट मुझे साइलेंट एप्रिसिएशन मुझे मिला करता था और मुझे जो इस फ़ील्ड में है, जो फ़ैशन की फ़ील्ड में है, उनकी तरफ से भी एनकरेजमेंट मेरे पास में था। तो शायद उसने मुझे एनकरेज किया और शायद इसलिए मैंने अपना माइंड बनाया था कि मुझे शायद इसमें भी वेंचर आउट करना चाहिए। तो ऐसे में वहाँ गया और अभी मुझे उस वहाँ की तरफ से काफ़ी एप्रिसिएशन और काफ़ी एक्नॉलेजमेंट मिलती है मेरे काम के लिए और मुझे अच्छा लगता है इस मामले में। Wonderful, wonderful. So good to see your other side also. Let me add this that did जो audience जो देखेगी अभी हमें बाद में और अभी भी जो देख रही है, just to inform them that Praveen is a very very good artist. He like sketches scenes beautifully and it is just a treat to the eye. So ये एक उनके personality का एक add-on flavor है. So he is completely in that creative zone altogether. So एक और चीज जो अभी आप मॉडलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मेरे माइंड में स्ट्राइक हो रही है दैट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड बैक सीट में बैक फ्रंट पे रहे हैं सो बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ वाज द फीलिंग पारुल, आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ। लेट मी टेल यू लाइक कि वही कहा ना मैंने कि एयरफोर्स ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं मेरी पर्सनालिटी में वो ट्रेड्स भी आए। तो जब मैं इंस्ट्रक्टर था तो मुझे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनीज इन फ्रंट ऑफ मी एंड एड्रेसिंग देम आई नो वाज नेवर एन इशू फॉर मी। सो फेसिंग द ऑडियंस ओवर देयर एंड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देम ऑन द रैम्प वाज नेवर एन इशू। And I had all the confidence which a person, a young guy, of 18 years or 20 years, 25 years, walking on the ramp as a professional, model. So I had the same temperament, I had the same attitude, I had the same confidence, which I was walking, being a 55 years of age. And that actually, impressed people over there that ki, sir, are you 55 years old? Are you serious? Well, yes, this is a fact. So actually, maybe this gives me more attention and more appreciation and affection of people when I walk in front of them and or I poses in front of them. So this gives me good satisfaction, and I also feel that ki at this age, if I am able to inspire people that yes, the life doesn't end when you are retiring, and it continues with more zeal and enthusiasm. That is your attitude actually, which works. And if you have right attitude and if you have that courage in you to undertake any new assignments and challenges in life, I think you can do wonders in any age. That's what I feel. absolutely so with this one more thing I would like to add how do you keep that energy and confidence going on at this stage of life at this stage in your life also what ignites you what from where do you get that spark वो आप कौन सा ऐसा कहते हैं ना आपकी कौन सा सीक्रेट मंत्र है which you follow मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ लाइफ इज सपोज टू बी लिव्ड। लाइफ को जियो। लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए लाइफ के अंदर में। लाइफ को लाइवली बना के रखोगे तभी आपके अंदर में वो एटीट्यूड आएगा, और वो आएगा कब? जब आपको अपनी लाइफ को जीने का तरीका आता है। जब आप सुबह उठते हैं, उस समय से जब आपकी आंखें खुलती हैं, किस समय खुल रही हैं? आप व्हाट टाइम यू आर गेटिंग अप? आर यू गेटिंग अप एट द टाइम व्हेन यू आर सपोज्ड टू गेट अप? Are you sleeping at the time when you are supposed to sleep? This begins from here. And then discipline is something, which is generally, it associated with the people who are in defense or belt services में है, भाई फौजी है तो disciplined है. Discipline is a way of life. If we know how to live our life in a disciplined manner, I think you can achieve anything. And this is what is absolutely keeping me kicking, and that way, starting from what I'm supposed to have, what I'm supposed to eat, how much I should exercise. Today, I am able to do 100 push-ups in one go. And let me see how many people at my age can do that. I'm not boasting and bragging on that, but I'm trying just to inspire those people who are of my age or little lower or little higher than that कि अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आपका रूटीन अच्छा है, तो आप जिंदगी तो भगवान ने 100 साल से ऊपर दी हुई है। हम कितने साल जीते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। मेरे डैड बोलते हैं कि 100 साल से पहले अगर कोई मरा,
तो उसने उसने अधर्म किया है। वो जीने के वो इस शरीर के लायक ही नहीं था वो। इस शरीर को हमको पालना हमारा कर्तव्य है। और हमारे साथ में जो हमें प्यार करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जिएँ, स्वस्थ जिएँ। और जिस समय एक इंसान को जाना होता है, जब सबको जाना है। इस दुनिया से सबको रुखसत होना है। वो जब जाएँगे यहाँ से तो एक हेल्दी माइंड और हेल्दी उसके साथ में गए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। वो सबको आई नो। सुखी। हाँ, सब यही मैं सोचता हूँ, यही मेरा जीवन जीने का तरीका है। और मैं चाहता हूँ कि सभी को अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन उतारना चाहिए। अपने जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम अपने को प्यार करते हैं, तो जिनको हम प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम स्वस्थ ना हों और हम वो ना करें जो ज़िंदगी में जो आपने कभी सोचा था वो करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और आपकी बात से वी एग्री सो मच, बिकॉज अगर मैं अपनी गुड वाइब्स कम्युनिटी की बात करूं तो हमारा पूरा बेस इसी चीज पे, मतलब वी लिव ऑन दिस बेस लाइन दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद फ्रॉम योर माइंड डेफिनेटली, बट हाउ यू स्टार्ट योर डे मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्योंकि वो एक डिसिप्लिन रूटीन होना, जिसे हम सोचते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मुश्किल से आता है, बट अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, सो देर इज नथिंग लाइक इट, बिकॉज देन यू हैव स्काई एज द लिमिट। आप कितना भी चाहो अचीव कर सकते हो, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। लाइक वी सी इन योर सिनेरियो, you started the second innings, but that was like it, you started with that that what about hitting that 100 in the first run itself. So that was, it was that impressive. But now uh, as the audience who is listening, as you have literally mentioned in few words, कि definitely life जी कैसी जाती है, but if I would ask you to sum up your life right now in few words, how would you sum up the beginning till now, the story of Praveen? Okay, firstly, I would like to mention over here, Parul, before I say something else, that you know why I got connected with you, because the good vibes, you know, that touched my heart. And you are doing such a fantastic job, you know, having these kind of sessions when you are bringing some changes in the life of people, when people are listening to you, and if that can bring some positive change in their life, what can be better than that? I am truly impressed. I am truly touched by the way you speak and you bring those changes in the life of people. And that is what made me to first, no, you spoke to me and you wanted me to join this for this podcast, and I said yes, I'm going for this. So Absolutely. first You of did all, not let even me, think twice. yeah, that's what. So I compliment you for this one. Secondly, here Thank you what so I feel much. about my thank you. Here what I feel about my life and how I can sum up my myself in this context is basically I feel that we must keep reinventing ourselves. We are not supposed to be, you know, just feel that yes, my I have reached my goal, and after that, kya? You can reinvent yourself. You have a lot of things to do in life. You know, अगर आप सोचें कि अगर आप घूमकर आ गए हैं तो क्या आप घूमकर आ गए हैं, आपने पूरा देश देख लिया? नहीं देखा। उसके अलावा दुनिया भी है, दूसरे देश भी हैं। तो अगर आप जितना इन्वेंट करना चाहें अपना वो इन्वेंट कर सकते हैं, जितना घूमना चाहें वो घूम सकते हैं। वही एटीट्यूड आपकी लाइफ के बारे में भी है। आप करना चाहें तो आपके पास में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। बी मीनिंगफुल। कुछ ना कुछ आप ऐसा कीजिए जिसमें कि आप अपनी लाइफ के अलावा दूसरों की लाइफ में भी कुछ चेंजेस ला पा रहे हैं। और अगर हम मिलकर इस सोसाइटी को अच्छा बना सकें और एक दूसरे का हैंड होल्डिंग कर सकें, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सरकार बना देती है, बट हम कितना फॉलो करते हैं। अगर हम एक दूसरे को वो उसके साथ में मिलकर पॉजिटिविटी लाते हैं और अपना कर्तव्य जो निभाते हैं, अगर उसको निभाते हुए चले गए हम लोग, तो शायद बहुत अच्छी चेंजेस हम ला सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब हम बात करते हैं कि क्या एज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आदमी ये सोचता है कि अब मैं रिटायर हो गया और मेरे पास में कुछ नहीं करने के लिए। मुझे एक वाकया ये याद आता है कि एक लेडी थी पारुल, शी वाज 90 प्लस, ओके, एंड शी वाज अ नोटेड पर्सनैलिटी इन दैट सोसाइटी। And so some people wanted to meet her. So they knock the door and the door opens. The servant comes and okay, आइए अंदर आइए। बैठाता है उनको काउच पे, वो बैठते हैं। तो आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैडम अभी आती हैं। और 5 से फिर 10 मिनट हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, वो बैठ के वहाँ कॉफ़ी भी पी चुके होते हैं।
उसके बाद में 15 मिनट के बाद में वो लेडी आती हैं, graceful lady, 90 plus years, graceful lady. She comes and apologizes कि आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई, आपको मेरे कारण इंतजार करना पड़ा। नहीं, वो तो बोले नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी चीज कुछ जरूरी काम में एंगेज थे? बोलता हाँ, मैं सितार सितार बजाना सीख रही थी। तो वो 90 साल की उम्र में सितार बजाना सीख रही हैं, तो आप सोचिए कि उनका माइंडसेट क्या है। उनके पास में अभी भी Absolutely. कुछ चीज है 90 ईयर्स के बाद में भी, कि वो कुछ करना चाहती हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम 50s और 60s और 70s में मेरा मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मुझे बैठ के अभी आराम करना चाहिए। चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, जो वो अपनी बहू को देखती हैं कि वो आ गई हैं उनके लाइफ में, और उसके बाद में वो बैठ जाती हैं कि अब उनका काम है। हमें काम करते रहना चाहिए और अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से this should be the way of life, and that is how we are supposed to be living our life. So reinvention is the mantra of the day. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम अपने, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक गुड वाइब्स विद इन, जो ये है ना, सब अंदर से ही आता है। जितना Absolutely, हम इसको absolutely. एक्सप्लोर करते हैं, उतना हमें वो अंदर हम जाते जाएंगे, और वी विल सी हाउ ब्यूटिफुली वी शेप आवर पर्सनालिटी। सो earlier we had heard life begins at 40, and with Praveen I can say force passion and 50s. That's one tagline which I can just state, and I feel that this could be the best note to end today's podcast. It had been an honor to be here with you, and I'm sure the audience, the viewers, would equally enjoy listening to your story and getting that inspiration that if there is a drive in life, you can touch the skies. Thank you so much for being there with us, and hope to connect further in many more ways in the days to come. Thank you, Thank you Praveen. so much, Parul. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here, and it was a very meaningful talk, which I feel that, and it was a pleasure talking to you, Parul. God bless you, Absolutely. and wish you all Thank the you. very best for your next. Thank you. Thank you. And all the best for all your future endeavors. Thank you. Have a great day. Bye Thank you. bye.